जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल इन दिस पर्टिकुलर सेशन जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस about again a very important consequential international affair news which is related to India China ties. You know that China is a dragon which is sitting right next to the India's border. और उस context में the greatest foreign policy challenge for India is how to tackle an aspiring hegemon which has a very rogue intentions, which has very unipolarity mindset, which is suffering from the Middle Kingdom syndrome, where you have a highly ultra-nationalistic leader, Xi Jinping, who is on a mission to make China the global power by changing the status quo. So in this context, India-China relations has become a very important relation to ponder about. It is very much relevant from your exam perspective, and also for an ordinary person, someone should be aware about this particular relation. Hence, in this context, I will try to make this lecture which is accessible for any section of the people who is preparing for the exam or who is not preparing for the exam. So keeping that in mind, I've prepared this video so that this video is fruitful information and full of knowledge for anyone who is going to watch this particular session. So let us try to start with India-China relations. So India-China relations, you know that India-China relations is very complex. India has a huge historical relationship with China. India has huge economic relationship with China. And also there's a geopolitical contest also which is going between India and China. So in this context, the relationship, considering its complexity, our Honorable Prime Minister Modi at Shangri-La Dialogue says that no other relationship of India has as many layers as our relations with China. No any other country has as many layers as our relation with China. Because if you consider our layers of friendship with China, so it is not only limited to cultural aspects, it is not only limited to economic aspect, it is not only limited to international aspect, it is not only limited to the convergences which India and China has from the climate convergence perspective. बहुत सारे perspectives हैं, बहुत सारे different layers हैं इन दोनों countries के relationship में, and that is why this relationship has become a very complex relationship of the 21st century, right? So if you have to understand the cultural ties of our relationship, it starts from Fahian and Huanshan, and also the yoga which you find in somewhere in different form in China and in different form in India. So culturally, historically, our relationship has existed century old, right? But this particular relationship which has historical ties has now come to a point which, as per the ORF Foreign Policy Survey 2021, says that US is our best friend. US is the most trusted partner. And in the same survey, it says that China is the biggest threat to India's security. In the same survey, it has categorically stated that China has emerged to be the India's biggest security threat. See, India-China का relationship 1962 में सबसे पहली वॉर हुआ था. उसके बाद से relations has been, you know, kind of a very not very good but stable relationship था. But आज जब 2020 में गलवान हुआ है, China has violated all the international agreements. China has violated all the border agreements. So in this context, China in the current times has emerged to be the biggest geopolitical, geostrategic threat for India. So in this context, हम लोग अब अपने analysis को start करेंगे between India-China relations. So before going into the current state of India-China relations, let us try to understand from a historical perspective how the relationship has been. So अगर हम लोग 1959 तक बात करते हैं, 1959 तक रिलेशनशिप काफी अच्छे थे. और इसके अच्छे होने का कारण क्या था? आपको पता है, जब 1949 में when People's Republic of China was formed, ending the colonialism, और उसके बाद जो चाइना में सिविल वॉर हुआ, उसके बाद जब 1949 में चाइना का स्थापना हुआ, then India was the first non-socialist country or non-communist country to accept China. Because आपको पता है चाइना सिविल वॉर में क्या हुआ था? जब चाइना कोलोनाइज था, उसके बाद जब कॉलोनियल एम्पायर्स चले गए, तो फिर चाइना में अंदरूनी एक सिविल वॉर हो गया. और उस सिविल वॉर में बेसिकली दो पार्टी थे. एक था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी विच वॉज लेड बाय नन अनदर देन माओ जेडोंग, और दूसरे तरफ था आपका पास KMT, कुओमिंतांग पार्टी, KMT पार्टी.
ठीक है, तो KMT पार्टी वॉज फाइटिंग विद CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. KMT party represented to some extent the liberal values, where CCP party was completely anti-liberal. It was based on that communistic set of ideology. और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ. US supported KMT and Russia supported the CCP. In this context, the CCP won the war. Chinese Communist Party जीत गया because Mao Zedong enjoyed huge amount of support from the peasant of the China. और इसी की वजह से KMT को भागना पड़ा चाइना से, एंड इट वेंट टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ इन ताइवान. और इसीलिए ताइवान को हम लोग क्या कहते हैं आज? रिपब्लिक ऑफ चाइना. एंड CCP जो चाइना में रहा, उसने चाइना को क्या कहा? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. सो उस समय कंट्रीज के पास ऑप्शन थे विच चाइना टू एक्सेप्ट एज द रियल चाइना, whether to accept the Chinese Communist Party led by Mao Zedong as the real China, or shall we accept KMT, which has got itself established in Taiwan as the real China. So US went with accepting Taiwan. US ने ताइवान को recognize किया as an official China. That means they recognize the Republic of China. But India on the other hand accepted Chinese Communist Party जो People's Republic of China है as the real China. और ये क्यों हुआ? बिकॉज यू नो दैट उस समय नेहरू थे और नेहरूवियन सोशलिज्म था. हमारा काफ़ी अच्छा इंक्लिनेशन था रशिया की तरफ, और रशिया चाइना की फ्रेंडशिप बहुत अच्छा थी बिकॉज दोनों कम्युनिस्ट कंट्री थे एंड दे बोथ वर फाइटिंग टू अरेस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ US इन दिस पर्टिकुलर रीजन. दे डिड नॉट वांटेड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी टू परपेचुएट इन साउथ एशियन एंड ग्रेटर एशियन रीजन. और इसीलिए रशिया चाइना ने 1950 में 30 साल का फ्रेंडशिप ट्रीटी भी किया. तो इस समय रशिया चाइना इंडिया की रिलेशंस काफी ठीक ठाक थी. ऑल्दो इंडिया हैड रिलेशंस विद US, बट स्टिल इंडिया हैड अ गुड रिलेशन विद रशिया एज वेल एज चाइना. यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था. उसके बाद प्रॉब्लम आपकी होने स्टार्ट हुई, राइट? तो पहले समझते हैं 1950 में देखो, इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड इट रिजेक्टेड विद चाइना द ताइवान, दैट इज नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना. और इस चाइना को हम लोग क्या कहते हैं? जो अभी का करंट चाइना तुम देखते हो, दैट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. 1954 में सिमिलरली नेहरू साइंड अ पंचिल एग्रीमेंट. पंचिल एग्रीमेंट के अंदर 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू इंडिया लिव्स पीसफुली विद चाइना. तो इसमें है बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर मैटर्स, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है, म्यूचुअल इंटरेस्ट्स. सो ये 5 प्रिंसिपल्स के आधार पर इंडिया चाइना का दोस्ती को एस्टैब्लिश किया जाता है. बट नाउ स्टार्टेड टू कम द प्रॉब्लम. 1959 में दलाई लामा फ्लेड टू इंडिया और इंडिया ने उनको सराहना दिया. इंडिया सेड दैट यस यू कैन लिव. और इसके बाद से चाइना स्टार्टेड टू एक्स अप द एंटे अगेंस्ट द इंडिया, विच फाइनली कल्मिनेटेड इन 1962 इंडो चाइना वॉर. और ये वॉर इतना डिसाइसिव वॉर था, ये टर्निंग पॉइंट था, जो इंडिया चाइना एक तरीके से उस समय इतना क्लोज रिलेशनशिप था, और वो सोचते थे कि द फ्यूचर विल बी ऑफ एशियन सेंचुरी which will be led by China in India. It will not be led by the West-led global order. Rather, the future is of Asia. And who are the major powers of Asia? It is the India, and China will be the future power. But this 1962 war, which S. Jaishankar in his book The India Way also talks about, that this war has not only led to defeat of India, rather it has led to defeat of trust of Indians on Chinese. So that's why this war has a huge mindset impact on many Indians. तो अभी तक हम लोग 1962 वॉर में हमें ऑब्वियस बात है हार हुआ, बट हमारे हार से केवल हमारा वॉर हार नहीं हुआ, बल्कि इस पूरे एशिया का हार हुआ. बिकॉज दैट लेड टू इंडिया अंडरस्टैंडिंग दैट चाइना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज चाइना इज अ क्लोज सोसाइटी, चाइना इज नॉट ओपन सोसाइटी. द क्लोज सोसाइटी ऑलवेज हैज टू वर्क ऑन प्रोपोगेंडा. It always works on hyper nationalism. So China will be always a threat to India. So 1962 war के बाद Indian policy makers were quite clear about this fact, right? So 1962 में जब vision of Asian century break हो गया, चाइना पाकिस्तान का एक्सेस यहीं से इमर्ज करना स्टार्ट हुआ. तो आपको पता है कि 1960-70 के बीच में आपको ग्लोबल ऑर्डर काफी चेंज हो रहा था. इसको मैं थोड़ा सा आपको समराइज करके बताता हूं. तो एक तरफ आपने देखा 1962 में आपका इंडिया चाइना वॉर हुआ. चाइना स्टार्टेड टू इंक्रीज इट्स फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान. यहीं पे चाइना रशिया का जो एक क्लोज फ्रेंडशिप हुआ करता था, वो भी 1960-70s के बीच में खराब होने लगा. आपको पता है सीनो सोवियत स्प्लिट हुआ. 1968 में चाइना और रशिया बॉर्डर पे लड़े, और उसकी वजह से चाइना के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट उस समय यूएस था, आज यूएस को रिप्लेस करके रशिया बिकेम द बिगेस्ट थ्रेट फॉर चाइना.
राइट? तो चाइना के लिए बिगेस्ट थ्रेट अब कौन बन गया है? रशिया। और यहीं पे यूएस को समझ में आ गया था कि दिस इज द राइट मोमेंट व्हेन आई कैन टेक चाइनीज पीपल ऑन माय साइड टू काउंटर द कम्युनिज्म। तो यहीं पे आपको पता है किसिंजर साहब ने सीक्रेट विजिट किया चाइना में, उसके बाद निक्सन यूएस के प्रेसिडेंट चाइना विजिट करते हैं और उसकी वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप बढ़ा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा किस तरीके से नया जियोपॉलिटिकल एक्सिस बन के आया 1970 के लगभग, जहां पे एक तरफ इंडिया रशिया था। आपको पता है इंडिया ने 1971 में रशिया के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी किया ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर। और दूसरे तरफ कौन सा जियोपॉलिटिकल एक्सिस था? दैट इज ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड यूएस। अब ये दो ब्लॉक में यहां पे हमारा पॉलिटिक्स बट गया था, राइट? सो 1960 टू 1988 कोल्ड पीस था। तो आपको पता है ये पूरे 1960 से लेके 88 तक का जो पीरियड था, यहां पे हमने देखा था जो दो जियोपॉलिटिकल ब्लॉक्स में बट चुके थे ये लोग, एक तरफ यूएस चाइना पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया रशिया। तो रिलेशनशिप काफी डेटोरिएट की इस पीरियड में, बट स्टिल द टू कंट्रीज वर नॉट the two countries relationship did not deteriorated to a point where they had to fight with each other. तो 1962 वाला वॉर जैसा इंसिडेंट रिपीट नहीं हुआ, मतलब वॉर नहीं हुआ दोनों कंट्री के बीच में, चाइना इंडिया के बीच में। बट दैट डज नॉट मीन कि चाइना इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। इसलिए उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन अ वर्ड नोन एज कोल्ड पीस। पीस वॉज देयर बट इट वॉज नॉट आउट ऑफ लव, रादर इट वॉज आउट ऑफ कंपल्शंस। दोनों की इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी, दोनों की इकोनॉमी में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, सो दैट वो मिलिट्री अगेन वापस से रिवाइव करें और एक्सपैंड करें। इसलिए पीस तो था, दैट मीन्स बोथ कंट्रीज डिड नॉट गॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन वॉर, बट दैट डज नॉट मीन कि बोथ कंट्रीज वर एंजॉइंग देयर बेस्ट पॉइंट ऑन टाइम। देयर रिलेशनशिप्स वर फाइन, इट वॉज स्टेबल, बट नॉट इट वॉज वेरी गुड। So that's why I say that 1960 से 88 के बीच में the relationship could be best described as cold peace. Next come the phase 3. That is a phase of peaceful rise that started from 1988 से लेके 2008 global financial crisis, उस समय की बात हो रही है, ठीक है? तो पहला रिलेशनशिप अच्छा, 1962 वॉर में रिलेशनशिप खराब हुआ, उसके बाद नया जियोपॉलिटिकल एक्सेस इमर्ज कर गया, उसके बाद कोल्ड पीस था, बट अब बोथ द कंट्रीज वेंट ऑन अ पीसफुल राइज। पीसफुल राइज का मतलब दोनों कंट्री शांति से आगे बढ़े। यू नो दैट 1990 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म किया, 1970s 80s के लगभग डेंग जियोपिंग उस समय जो चाइना के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो यहां पे दोनों कंट्री ने अपने आप को ओपन किया और रिफॉर्म किया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स यहां पे हुए थे। 1988 में राजीव गांधी विजिट करते हैं बीजिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होता है बिकॉज जो 1962 के बाद से जो रिलेशनशिप्स आपको एकदम ठंड पड़ी हुई थी, इस रिलेशनशिप को अगेन रिवाइटलाइज किया गया बिकॉज इंडिया हैड अ इकोनॉमिक कंपल्शन दैट इंडिया ऑल्सो वांटेड टू ग्रो, एंड टू ग्रो इट नीडेड अ पीसफुल बॉर्डर, एंड दैट्स व्हाई राजीव गांधी विजिटेड टू चाइना। और उस समय के जो चाइनीज के जो लीडर थे, आपको पता है डेंग जियोपिंग, और डेंग जियोपिंग वाज दैट गाय हु हैज लेड ऑल द फाउंडेशंस ऑफ चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आज जो चाइना ने डबल डिजिट से ग्रो किया है, इट कुड हैव नेवर बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेंग जियोपिंग। डेंग जियोपिंग के पहले कौन थे? माओ जेडोंग, और माओ जेडोंग के समय चाइनीज इकोनॉमी कंप्लीट कोलैप्स पे थी, लोग भूखे मर रहे थे because China was completely involved in that geopolitics. It was not focusing on geoeconomics. But when Deng Xiaoping came to power in 1978 in China, that guy was pragmatic. He knew that without economic success, we can never have that military capability. And that's why Deng Xiaoping invested all its time in building the Chinese economy. और इसी समय डेंग जियोपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन भी था, that was keeping a low profile and binding time. कि चाइना को अब जियो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, चाइना को ग्लोबल हेजेमनी और ये सब चीज में नहीं जाना चाहिए। वी शुड जस्ट बी क्वाइट, वी शुड फोकस ऑन आवर इंटरनल डेवलपमेंट, टाइम विल स्पीक फॉर अस। तो इसलिए चाइना ने अपने जितने भी ये सब लड़ाई झगड़े थे, ग्लोबल ऑर्डर में अपना स्टैच्यूर था, उन सब कॉन्टेस्ट में गया ही नहीं, एंड चाइना वॉज कंप्लीटली फोकसिंग इटसेल्फ ऑन इकोनॉमी। और इंडिया भी आपको पता 1990 के बाद व्हेन इट शिफ्टेड टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो हमने अपने जो आइडियोलॉजिकल बायसनेस था, दैट बायसनेस वाज ऑफ सोशलिज्म, उसको शेड अप कर दिया, एंड वी ऑल्सो बिकेम प्रैग्मेटिक,
we also started to focus on geo-economics. So 1990 के बाद, because both countries were very pragmatic, they were thinking about geo-economics, and that led to huge amount of convergences between the two countries. और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों कंट्री अपने दोस्ती को अच्छे से बढ़ाना स्टार्ट किए. इसीलिए हम लोग कहते हैं इस फेज को पीसफुल राइज. 1993 और 1996 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट भी हुआ. आपको पता है 2000 के समय रिक और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए. इसका पर्पस था अमेरिकन हेजेमनी को चेक करना एंड टू एंश्योर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. सिमिलरली 2003 में वाजपेयी विजिट करते हैं चाइना में, विच लेड टू इवोल्यूशन ऑफ टाइज. आवर टाइज गॉट कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. 2013 में अगेन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होता है. तो यहां पे चीजें काफी ठीक चल रही है, बिकॉज दोनों कंट्री एक दूसरे को दुश्मन की तरह नहीं देख रहे हैं. रादर बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू कोऑपरेट, बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी. लेकिन अब मामला बिगड़ेगा आगे. अब मामला बिगड़ेगा बिकॉज अगेन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है. सही देखो, कोई भी दो कंट्री का इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशंस, यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज द वर्ल्ड ऑर्डर. वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली गिव्स यू, और वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली एक्सप्लेन्स वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. For example, you have a unipolar world order. That means power is concentrated in one pole. Bipolar world order. That means power is distributed among two poles. So this world order keeps on changing. Who has power? तो अगर मैं कोल्ड वॉर के समय बात करूं तो यूएस एंड यूएसएसआर had power. But now if you understand, then the major power is with the US and China. But apart from it, there are many other small major powers such as India, middle power जिसको हम लोग कहते हैं, India, Brazil, South Africa, France, Australia. ये सब हमारे मिडिल पावर होंगे. तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जब चेंज होता है उसके हिसाब से दो कंट्रीज के रिलेशनशिप भी चेंज होते हैं. तो 1970 में हमने देखा जो उस समय की वर्ल्ड ऑर्डर थी, जहां पे एक तरफ आपको इंडिया को रशिया की तरफ आना पड़ा और चाइना, पाकिस्तान, यूएस को आना पड़ा. अब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा. अब ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा? बिकॉज ऑफ बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए 2012-2014 उस समय के लगभग. एक तो आपको पता है 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया और रशिया का चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी इस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ने लगा, बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट हुआ. तो यहां से रशिया चाइना की दोस्ती और तेज रेट से बढ़ी. इंडिया को भी समझ में आ चुका था कि पावर एसिमेट्री हमारा चाइना के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज चाइना जिस रेट से ग्रो किया है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पास, इट वॉज ह्यूमंगस. इट हैड दिस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया ऑल्सो रियलाइज कि बॉस बहुत ज्यादा एसिमेट्री ऑफ पावर हो रहा है, और इतने एसिमेट्री ऑफ पावर होगा तो चाइनीज पीपल और चाइना की जो गवर्नमेंट है वो पक्का फायदा उठाएगी इस मौके का. सो इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड टू बिकम वेरी प्रैक्टिकल. ठीक है, तो अब एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर एक ट्रांजिशन मोड में जा रहा है. ऑल्दो भी चेंज हुआ नहीं, चेंज अब हुआ है 2020 के बाद, पैंडेमिक के बाद से एक सिग्निफिकेंट चेंज हम लोग देखने को मिल रहे हैं. बट ये जो पूरा चेंज है ये स्टार्ट हो जाता है 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद. और अगर इंडिया चाइना की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 2012 में जब शी जिनपिंग चाइना में पावर में आए, और 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में पावर आए. बिकॉज दीज टू लीडर्स आर कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग. दे हैड ह्यूज कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी, मास अपील, नेशनलिस्टिक लीडर्स, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करने वाले लीडर्स. तो अब जो है रिलेशनशिप्स को पता था दोनों कंट्रीज को कि नाउ इफ देयर एनीथिंग हैपेंस इट माइट एस्केलेट. ठीक है, so now come to the phase 4, that is from 2014 till now. 2012 में आपके पास शी जिनपिंग पावर में आए, 2014 में आपके पास प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए, 2014 में प्रेसिडेंट शी इंडिया को विजिट करते हैं, 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना विजिट करते हैं, 2017 में इंडिया को एससीओ का मेंबरशिप दिया जाता है. लेकिन अब क्या हुआ, 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ भी हो गया. और डोकलाम स्टैंड ऑफ एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक पॉइंट था, बिकॉज काफी लंबा स्टैंड ऑफ रहा था ये. डोकलाम इज अ रीजन विच इज लाइज एट द ट्राइजंक्शन ऑफ इंडिया, भूटान एंड चाइना. एंड डोकलाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बिकॉज इट लाइज क्लोज टू द चिकन स्नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर. सो 2017 में सबसे पहला स्टैंड ऑफ हुआ, बट स्टिल इस स्टैंड ऑफ को कुछ हद तक सक्सेसफुली रिजॉल्व किया गया. आपको पता है इसके बाद 2 इनफॉर्मल समिट्स हुए थे. 2018 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए वुहान में, उसको कहते हैं वुहान इनफॉर्मल समिट. देन 2019 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इंडिया आते हैं महाबलीपुरम में, इनफॉर्मल समिट, तो अगेन मीट एट ममलापुरम. सो दे एंश्योर दैट द डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट. तो अभी तक ठीक है, प्रॉब्लम्स बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं अगेन वापस. वो पीसफुल राइज का फेज खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं यहां पे.
ट्रेड रिलेशंस में भी प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज इंडिया हैड ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बिकॉज चाइनीज पीपल एंड चाइनीज गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ द एक्सेस ऑफ इंडियन गुड्स इनटू देयर मार्केट और उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आता है. देन अगेन द बॉर्डर डिस्प्यूट डोकलाम. तो अब रिलेशनशिप में थोड़ा सा टेंशंस आने लगा. लेकिन ये जो टेंशंस आ ही रहा था उसको एक मेजर पुश मिला इन द ईयर 2020 व्हेन चाइना एंटर्ड इनटू इंडियाज टेरिटरी एंड किल्ड 20 of our Indian soldiers. Now this was again a 1962 wala moment. Again a big turning point in India-China relation. और ये रिलेशन जो 2020 के बाद एक प्रॉब्लम में आया है ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है और मे बी हो ना पाए. So first time after the 1962 war that soldiers have died in clashes in Ladakh. Right? Then इसी के बाद क्या हुआ, जो पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो आर्मी है, पीएलए सोल्जर्स इन्वॉल्व इन गलवान क्लैश. जो गलवान क्लैश में जो चाइनीज सोल्जर्स इन्वॉल्व थे दे वर मेड एज ओलंपिक टॉर्च बियरर इन द विंटर ओलंपिक्स. सोचो ये क्या है, एक तरीके से चाइना प्रोवोक करना चाहता है इंडिया को, इसको सिंबॉलिक कहते हैं, बट ये एक तरीके का प्रोवोकेशन है इंडिया को. एंड दैट्स व्हाई इंडिया बॉयकॉटेड द विंटर ओलंपिक्स. एंड देन चाइना, अभी आपको पता है रिसेंटली अगेन अरुणाचल प्रदेश में कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स का नाम अगेन चेंज करके कहा है बिकॉज अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानता है. फाइनली न्यू लॉ लाया है विच लिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक स्टेप्स टू सेफगार्ड द नेशनल सॉवरेनिटी. तो चाइना ने एक नया लॉ लाया है, उसमें कहा है कि अगर कोई भी हमारे नेशनल सॉवरेनिटी को इंपैक्ट करेगा तो विल रिटेलिएट, विल टेक ऑल द स्टेप्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी. तो ये था कुछ आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. सो अगेन आई वुड बी समराइजिंग यू. China-India relations started on a good note. The relationship suffered after the 1962 war. उसके बाद world order change हुआ which led to emergence of two geopolitical axes, one US-India, China, Pakistan, and on second hand Russia and India. उसके बाद आपके पास relationship हमने देखा एक peaceful rise का दौर आया. कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर कोलैप्स हो गया, जियो इकोनॉमिक्स दोनों कंट्रीज की प्रायोरिटी हो गई, उसके में कन्वर्जेंसेस आने लगे. And that's why the both countries started to grow with each other. लेकिन ये सब चीजें हो रही थी. इंडिया was growing but China was growing at a double pace. That led to huge asymmetry in power. और जब इतना asymmetry in power होता है तो psychologically एक कंट्री दूसरे कंट्री को दबा के रखना चाहता है, और यही हुआ. So the first time it happened in Doklam, and the second thing, the major decisive thing happened in 2020 Galwan, when China violated every agreement and every international law and principles. ठीक है. सो ये आपका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हो गया इंडिया चाइना रिलेशंस का. अगर आज का रिलेशन का हमको स्टेटस बताना है कि आज का जो रिलेशन है उसको कैसे हम बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. जो जोसेफ नाई एक स्कॉलर है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है. Complex interdependence means कि India and China are interdependent on each other. But this interdependence is not very simple. It is very complex. Because India China पे डिपेंड करता है, China भी इंडिया पे डिपेंड करता है बहुत चीजों में. बट दोनों एक तरफ डिपेंड भी करते हैं, लेकिन दोनों एक तरफ लड़ते भी हैं, प्रॉब्लम्स भी होता है. सो इसी को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. व्हेन इंटरडिपेंडेंस इज देयर बट देयर इज नो 100% लव बिटवीन द टू कंट्रीज, देयर आर आल्सो सम पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्टेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. सो ऐसे इंटरडिपेंडेंस को विच हैज द डायनेमिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. सो आज गलवान जैसा इश्यू हुआ तो क्या इंडिया ने चाइना के साथ खत्म कर दिया रिश्ता? नहीं, हमारा तो ट्रेड और बढ़ गया चाइना के साथ. और यही अब देख लो पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन ही नहीं है, ट्रेड भी नहीं है. सो चाइना एक अलग चैलेंज है बिकॉज चाइना के साथ हमारा इंटरडिपेंडेंस खूब है और दूसरी तरफ एक एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट है. सो ऐसे रिलेशंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कह सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोऑपरेशन भी है. सेकेंड, अगेन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है. सो ये वर्ल्ड ऑर्डर आपका हमेशा चेंज होते रहेगा. 1960 में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, 2014 में रशिया का क्राइमिया और 2017 में डोकलाम और 2020 गलवान अगेन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ. तो वही जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है. सबसे पहला क्या चेंज हो रहा है कि चाइना जो है वो यूनिपोलर एशिया चाहता है.
जो डेंग जियोपिंग का था, कीपिंग योर प्रोफाइल लो एंड बाइंडिंग योर टाइम, कि अपना समय आएगा, अभी हमें उन चीजों में नहीं जाना है, अभी हमें केवल जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस करना है. नाउ द चाइना थिंक अपना समय आ चुका है. नाउ देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग आवर स्ट्रेंथ. नाउ व्हाटएवर वी वांट वी विल डू इट, राइट? सो चाइना वांट्स टू नाउ अटेम्प्ट यूनिपोलर एशिया. इसलिए तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये सब ग्रैंड प्रोजेक्ट्स ला रहा है चाइना. और उसी के लिए इंडिया का जो एसिमेट्री है पावर का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आया इंडिया के लिए. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया इज गोइंग फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बैलेंसिंग. ये पढ़ चुका है हमने. इंटरनल बैलेंसिंग आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई स्कीम, मेक इन इंडिया. एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्वाड. और यूएस के लिए इंडिया हैज इमर्ज एज अ स्विंग स्टेट एंड एज एन ऑफशोर बैलेंसर. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका इंडिया यूएस का रिलेशंस काफी बढ़ा है. बिकॉज यूएस को अपना हेजेमनी बनाना है, उसके लिए चाइना को कंटेन करना है, और इंडिया को अपना बॉर्डर पीसफुल चाहिए, बिकॉज इंडिया वांट्स टू ग्रो एंड नॉट फाइट, एंड दैट्स व्हाई इंडिया अगेन वांट्स टू ब्रिज इट्स एसिमेट्री ऑफ पावर विद चाइना, एंड दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग द हेल्प ऑफ यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज. तो इसकी वजह से इंडिया का वेस्ट के साथ और स्पेशली यूएस के साथ रिलेशनशिप काफी बढ़ा है. और इसी के विपरीत अगर मैं चाइना का रशिया के साथ देखूं, तो जो 2014 के बाद क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, और अब फाइनली रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया जो कंप्लीटली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है, और रशिया हैज कंप्लीटली पाइवॉट टुवर्ड्स चाइना. तो वहां पे अब रशिया, चाइना, पाकिस्तान की रिलेशनशिप काफी तेज रेट से बढ़ रही है. और ऑन द अदर हैंड आपका यूएस और इंडिया का रिलेशन बढ़ रहा है. सो दिस इज द ट्रांजिशन विच द वर्ल्ड ऑर्डर इज फेसिंग, juggling up to. Because there's a huge fundamental shift which is happening in the global politics. Like-minded countries are coming together to ensure the rules-based world order, right? So अभी जो समय है वो आपको completely अलग समय है. तो ये आपको कभी भी रिलेशनशिप जब पढ़ना होता है तो आपको पहले वर्ल्ड ऑर्डर समझना पड़ता है कि किस वर्ल्ड ऑर्डर से ये दुनिया गुजर रहा है, और उसी वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में फिर आपको रिलेशनशिप को समझना पड़ता है. ठीक है. सो ये आपका था अभी का एनालिसिस. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. कॉन्फ्लिक्ट भी है, कोऑपरेशन भी है. देन द ट्रांजिशन इन वर्ल्ड ऑर्डर. चाइना का हेजेमोनिक एस्पिरेशंस, चाइना का एस्पिरेशंस ऑफ यूनिपोलर एशिया. इंडिया इज गोइंग फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बैलेंसिंग. यूएस के लिए इंडिया का एज अ स्विंग स्टेट इमर्ज करना और एज अ ऑफशोर बैलेंसर इमर्ज करना. लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, which are trying to ensure कि रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो. राइट. तो ये सब चीजें आपको ट्रांजिशन हो रहा है. और एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन जो आई थिंक इट हैज बीन मिस्ड, जो चाइना, पाकिस्तान और रशिया, स्पेशली चाइना और रशिया, और स्पेशली रशिया का जो पाइवॉट हुआ है चाइना की तरफ, तो एक नया जियोपॉलिटिकल एक्सेस आपका उधर बन रहा है. तो देखो, पहले जियोपॉलिटिकल एक्सेस यूएस, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया. आज देखो क्या हुआ, रशिया इधर चला गया है. सो रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएस इधर आ गया, यूएस, इंडिया. तो यही वर्ल्ड ऑर्डर में एक फंडामेंटल चेंज आया है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये रिलेशनशिप को समझना चाहेंगे. एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशंस, कुछ फैक्ट्स हैं. अगर मैं एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशन बात करूं तो इंडिया का $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चाइना का $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है. हमारा ट्रेड लगभग $100 बिलियन से ज्यादा होता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया has $50 ऑफ ट्रेड डेफिसिट. And India, that's why it's trying to decouple itself from China, become Atmanirbhar. And not only India, but many other countries which has been exposed to supply chain shocks during the pandemic is going for supply chain diversification, which has led to emergence of initiatives like SCRI, Supply Chain Resilience Initiative. किस तरीके से supply chain को हम लोग मजबूत बना सके. और इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ आए हैं. देन आपको पता है कि China plus one स्ट्रैटेजी भी बहुत सारे कंट्रीज अडॉप्ट कर रहे हैं टू डाइवर्सिफाई इट्स बेस. सो अब चाइना का जो एक गोल्डन पीरियड था इकोनॉमी का, बॉस, वो खत्म हो रहा है. बिकॉज नाउ द कंट्री हैज ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट बॉस, दिस कंट्री इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन जियो इकोनॉमिक्स, बट नाउ दिस कंट्री इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन जियो पॉलिटिक्स. So now the business people, the investors are becoming increasingly skeptical about the stability in China. And that's why China से सब लोग बाहर निकल के अपने जो बेस उसको डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, और उसमें इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन. तो ये जो China+1 स्ट्रैटेजी है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव है, जो अभी पूरा यूएस
और वेस्ट कंट्रीज का जो सप्लाई चेन चाइना के साथ लिंक्ड है, नाउ दे आर ट्राइंग टू गो फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड बिल्ड सम पैरेलल सप्लाई चेन्स विद कंट्रीज, लाइक माइंडेड कंट्रीज, इन विच इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। लेकिन इनके बावजूद जो हमारा ट्रेड है वो आपको काफी तेज रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। देन फाइनली क्लाइमेट चेंज में अगेन इंडिया चाइना, यहां पे एक क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया चाइना काफी कोऑपरेट करता है। क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, क्लाइमेट अडेप्टेशन हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इन बिकॉज बोथ आर डेवलपिंग कंट्रीज। उस सेंस में देखो चाइना इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का अगर पर कैपिटा इनकम देखोगे तो बहुत ज्यादा है। तो यूएस का अगर पर कैपिटा इनकम देखोगे इट्स 5 टाइम्स दैट ऑफ चाइना। सो डेवलप्ड कंट्री तो वही है, बट चाइना का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, तो ओवरऑल उसका इकोनॉमी बड़ा है, बट पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। सो चाइना उस कॉन्टेक्स्ट में अभी डेवलपिंग कंट्री है, एज पर द डेफिनेशन विच हैज बीन गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक। सो डेवलपिंग कंट्रीज को अभी भी ग्रो करना है, अभी भी ग्रो करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल चाहिए ही चाहिए। इसलिए दोनों कंट्रीज कुछ हद तक कोलैबोरेट करते हैं क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट्स के ऊपर। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है रिलेशनशिप में, वो देखते हैं। तो चैलेंजेस सबसे पहला क्या है, चाइना का हेजेमोनिक एस्पिरेशंस, चाइनाज अटेम्प्ट टू बिल्ड अ यूनिपोलर एशिया, डिफरेंट इन परसेप्शन, हमारा कल्चरल गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया यूएस का देखो कल्चर गैप काफी कम है, हम लोग भी बर्गर खाते, वो लोग भी बर्गर खाते हैं, हम लोग भी इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी इंग्लिश स्पीकिंग, बट जो चाइना इंडिया का कल्चरल गैप है बिकॉज ऑफ टूरिज्म, ये सब काफी कम है हमारे बीच में, इसलिए वो परसेप्शन गैप है। थर्ड, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट है, एसिमेट्री इन पावर दैट्स बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इंडियाज बिड टू एनएसजी न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप, जिसमें चाइना ने ब्लॉक कर दिया। जो पता है आपको, रिसेंटली आप सुनोगे कि चाइना ने इंडिया ने जो रिक्वेस्ट किया था कि उसको इस पर्टिकुलर टेररिस्ट को ऊपर सैंक्शंस लगाए जाना चाहिए अंडर द 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमिटी, उसको भी चाइना ने वीटो करते रहता है एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। फाइनली 2020 में फर्स्ट डाउनस्ट्रीम डैम ऑन द लोअर रीचेस ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से ऑरिजिनेट करके इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आती है, तो उसमें चाइना बहुत सारे डैम्स बना रहा है। तो पहले वो अपर रीचेस में बनाता था, अब वो लोअर रीचेस में बना रहा है। लोअर रीचेस मतलब इंडिया के जस्ट पास। तो इसी को क्रिस्टोफी जेफरलॉट कहते हैं वाटर बॉम्ब्स इन द हिमालयाज, कि उस पर्टिकुलर डैम का पानी कभी भी रिलीज कर सकता है वॉर के समय और पूरा नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये सब चाइना के रोग इंटेंशंस हैं, फॉल्स इंटेंशंस हैं, नेगेटिव इंटेंशंस हैं। बिकॉज चाइना के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है पता है आपको? चाइना के लिए इंडिया का इकोनॉमी उतना बड़ा थ्रेट नहीं है, ठीक है, दैट्स ऑल्सो थ्रेट, बट द बिगेस्ट थ्रेट फॉर चाइना इज दैट चाइना डज नॉट वांट अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी सिटिंग राइट नेक्स्ट टू इट्स बॉर्डर। बिकॉज अगर इंडिया एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बन के आता है, इंडिया अपने डेमोक्रेसी के कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से भी ग्रो करता है, तो चाइना के लोग खुद बोलेंगे कि आप जो कह रहे हो इतने बड़े कंट्री के लिए डेमोक्रेसी ये सब जरूरत नहीं है, तो इंडिया ने तो ग्रो किया। तो हो सकता है वहां पे तियानमेन स्क्वायर वाला अगेन प्रोटेस्ट आते रहे। इसलिए चाइना हमेशा इंडिया को ह्यूमिलिएट करना चाहता है, इंडिया को कंटेन करना चाहता है, बिकॉज इट्स नॉट अफ्रेड ऑफ इट्स इकोनॉमी एज सच, इट्स अफ्रेड ऑफ द डेमोक्रेसी, द वैल्यूज लाइक सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, चेक्स एंड बैलेंसेस, सेपरेशन ऑफ पावर। ये सब चीज से चाइना काफी ज्यादा डरता है इंडिया से, और चाइना इसलिए चाहता है कि लोगों के सामने बताए कि इंडिया इज अ फेल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट फॉर कंट्रीज लाइक एशिया, कंट्रीज इन एशिया, राइट? सो ये आपके चैलेंजेस हैं कुछ रिलेशनशिप में। उसके बाद अगर हम लोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपको पता है चाइना का और शी जिनपिंग का ग्रैंड प्रोजेक्ट है दुनिया के सामने। 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और अब चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको मेंशन किया गया है। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक है हमारे पास सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, तो यहां पे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स वो सब बनाए जा रहे हैं। और सेकंड है आपके पास मैरीटाइम सिल्क रोड, जहां पे डिफरेंट पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं आपको। और इसके थ्रू चाइना इज ट्राइंग टू इंटीग्रेट द एंटायर यूरेशिया। और इसलिए देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रेक द बॉटलनेक्स इन एशियन कनेक्टिविटी, कि एशिया में जो कनेक्टिविटी के चैलेंजेस को खत्म करके एक पूरा बड़ा मार्केट बनाओ। बिकॉज चाइना के पास इतना पैसा है कि वो ये कर सकता है। चाइना के पास इतने इंडस्ट्रीज हैं और जो एक्सपोर्ट है, क्योंकि चाइना यू नो दैट इज अ हाईली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट से पैसा कमाती है चाइना। तो इसलिए चाइना अपने एक्सपोर्ट के मार्केट बेसिस को बढ़ाना चाहती है। चाइना के पास ह्यूज डॉलर रिजर्व्स हैं, उस डॉलर रिजर्व के थ्रू वो इन्वेस्ट करती है। एंड देन देयर आर मेनी अदर फॉल्स इंटेंशंस ऑफ चाइना बिहाइंड BRI व्हिच विल सी इन सम टाइम। ठीक है, सो रेफर टू एज न्यू सिल्क रोड
to break the bottlenecks in the Asian connectivity. 2013 में शी जिनपिंग announced BRI and now it has been mentioned in the constitution. इसके दो components हैं, Silk Road Economic Belt and Maritime Silk Road. Next, vast network of railways, energy, pipelines, highways, special economic zones इसके अंदर बनाए जा रहे हैं. More than 120 countries have now signed and joined the BRI. So अगर आपको दुनिया में लीडर बनना है, जब यूएस को लीडर बनना था तो यूएस ने ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन लाया. यू नीड इंस्टीट्यूशंस टू शो योर पावर, और चाइना भी यही कर रहा है. बैंक्स बना रहा है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्री के साथ मिलके, बीआरआई जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहा है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, आरसेप को ज्वाइन किया. तो ये सब चाइना क्या करना चाह रहा है? इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना चाह रहा है. उस इंस्टीट्यूशंस की वजह से चाइना हेजेमनी को ब्रेक करना चाह रहा है वेस्ट का. और BRI is that greatest project, the greatest dream of Xi Jinping, because China knows कि अगर BRI सक्सेस करता है तो उससे चाइना का ग्लोबल इंफ्लुएंस काफी बढ़ जाएगा. सो दैट इज अ लीडरशिप मोमेंट और द सो कॉल्ड लीडरशिप मोमेंट फॉर शी जिनपिंग. ये दो कंपोनेंट्स है, दैट्स समथिंग फाइन. व्हाट आर द चैलेंजेस टू द वर्ल्ड? अब ये BRI प्रोजेक्ट की वजह से चैलेंजेस क्या है दुनिया के सामने? सबसे बड़ा चैलेंज है डेब्ट ट्रैप. आपको पता है अभी श्रीलंका का बेस्ट एग्जांपल है. श्रीलंका का 20% डेब्ट चाइना से है, और चाइना ने किस तरीके से जबरदस्ती डेब्ट दिया है श्रीलंका को. जरूरत भी नहीं है, आपको घर नहीं खरीदना, बट आपको बोल रहा है कि भाई 0.001% पे ले लो. बट भाई कभी ना कभी तो चुकाना पड़ेगा. यू हैव टू रीपे इट बैक, एंड यू कैन ओनली रीपे इट बैक व्हेन यू आर गेटिंग सम इनकम, बिकॉज फ्रॉम दैट ओनली यू कैन पे. बट द प्रोजेक्ट्स आर बीइंग बिल्ड बाय द चाइनीज मनी, एंड चाइनीज पीपल नो दैट, और चाइनीज कंपनी नो दैट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल. So the country in which these projects are being constructed, they're not able to repay back the loan. And because of that, China forcefully acquires that area. हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका में, श्रीलंका ने चुका नहीं पाया चाइना का लोन, तो चाइना ने क्या किया? 99 ईयर के लीज पे ले लिया. तो ये सबसे बड़ा डेब्ट ट्रैप में फंसाया जा रहा है. आपको डेब्ट नहीं चाहिए, आपको डेब्ट चाहिए भी तो वो अच्छे जगह चाहिए. बट चाइना क्या करना चाह रहा है? वो आपको डेप्थ वहां पे दे रहा है जहां पे चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशंस पे, चोक पॉइंट्स पे, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में आपको लोन दे रहा है, और वो चाहता है कि आप चुका ना पाओ. बिकॉज उसी से फिर चाइना को क्या मिल जाएगा? मौका कि ठीक है आप लोन नहीं चुका पा रहे तो ये एरिया आप मुझे लीज पे दे दो. तो हम्बन टोटा एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट है, राइट मिडिल ऑफ द इंडियन ओशियन, नियर टू इंडिया. तो इसी को कहते हैं डेब्ट ट्रैप, इसी को डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहते हैं. ठीक है, तो चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक कैलामिटी इन श्रीलंका. ओपेक बिडिंग प्रोसेस, जो BRI प्रोजेक्ट के अंदर बिडिंग है वो कंप्लीटली ओपेक है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में चाइनीज फर्म्स का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है. कॉन्ट्रैक्टर्स हैव इन्फ्लेटेड क्लॉज लीडिंग टू कैंसिल प्रोजेक्ट. तो कॉन्ट्रैक्टर जो चाइना से आते हैं, लेबरर्स भी चाइना से आते हैं. ऐसा नहीं कि चाइना इन्वेस्ट करता है तो लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करता है. चाइना अपने खुद लेबर लेके जाता है, अपने खुद कॉन्ट्रैक्टर्स लेके जाता है. तो इसी को कहते हैं नियो कोलोनियलिज्म इन विच चाइना इज इंगेज्ड. और ये अफ्रीकन कंट्रीज में तो खूब कर रहा है, और दुनिया में हर जगह कर रहा है. राइट, पॉलिटिकल बैकलैश हो रहे हैं डोमेस्टिक कंट्रीज में. अभी देख लो लेटेस्टली मालदीव्स में हुआ, बिकॉज चाइना इस तरीके से उस कंट्री को फंसा देता है. सो पॉलिटिकल रिटेलिएशंस हो रहे हैं. And see, I'm not exaggerating it. This is happening. And why this is happening? Because China is a closed society. अगर वो open society होता तो कोई problem नहीं है. See, open society is what? A society which is open. The informations can be exchanged between the inside and the outside world. The leaders change. There's an idea to tell what you want, to prove the leaders wrong. So when you have an open society, you might have some problem. But in the long term, that will not be a great problem, because Hitler, Germany under Hitler, closed society. Mussolini, Italy, closed society. North Korea, Kim Jong-un, closed society. Maduro, Venezuela, closed society. So any closed society is prone to misabuse their power. Because absolute power corrupts absolutely. So that is the problem with China, कि it's a closed society. So India does not have problem. You grow. You become a 20, 30, $50 trillion economy. But you're a closed society. And closed society के साथ सबसे प्रॉब्लम है, अगर आप फेक करते हो चीजों को, अगर आप सब कुछ अपने मन के अंदर रखते हो, so that's a very big problem. And when you meet a people who are able to express themselves, who is ready to being proven wrong, who is ready to exchange their views,
who is ready to learn from you. So that person always grows, and that person does not have any kind of malicious intentions. But that is not the case with China, because China in its foundation is a closed society, and closed societies are always prone to misuse their power, and that's what China is being engaged in. So sometimes you might think ये पूरा West का conspiracy है, exaggerate करना China के threat को, but that's happening. Now what are the challenges to India because of BRI? इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है? BRI इज अ प्लान टू डोमिनेट एशिया. हमने बात किया कि यूएस का चाइना का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव क्या है कि वर्ल्ड में हेजेमनी तो आएगा, पहले यूनिपोलर एशिया चाहिए मुझे. इस पूरे एशिया रीजन में हमें हेजेमनी चाहिए, और एशिया हेजेमनी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कौन है? इंडिया. बिकॉज इट्स ओनली द इंडिया विच कैन चैलेंज चाइना. यूएस तो बहुत दूर है, तो इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है कि डायरेक्टली वो चाइना के इन्फ्लुएंस को इस एरिया में कम करे. इसीलिए चाइना ऑलवेज ट्राइंस टू डीमोटिवेट इंडिया. पार्ट ऑफ सीपेक प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो आपके पास गिलगित बल्तिस्तान से जाता है, and that's a complete violation of sovereignty of India, because that's something which is passing through the Indian region, and they had not asked with Indian authorities also. Hamper India's larger interest in South Asian region. South Asia has always been India's forte, India's region of influence. India has been the net security provider in the South Asia and the Indian Ocean region. और वहीं पे अब घर के अंदर घुस के China is trying to challenge and demotivate again India by projects like China-Myanmar economic corridor, Nepal-China trans-Himalayan multi-dimensional connectivity network, and finally the string of pearl strategy in IOR. तो एक तो साउथ एशिया जो कि इंडिया का जनरली एक इन्फ्लुएंस वाला एरिया है, वहां पे खत्म कर दो इंडिया का रोल. इंडियन ओशियन रीजन जहां पे अगेन इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, वहां पे भी इंडिया को किस तरीके से कंटेन करो. एंड सी दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी. इस तरीके से वो इंडिया के ऊपर एक पर्ल, एक माला पहना दिया है कि आप इसके बाहर निकल ही ना सको, आपको यही कंटेन कर लेंगे हम. तो यहां देखो हम्बन टोटा पोर्ट हो गया, मालदीव में बहुत ज्यादा पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, क्याकप्यू पोर्ट म्यांमार में. तो इसके थ्रू इट इज ट्राइंग टू कंप्लीटली कंटेन इंडिया, कि भाई साहब आप यहीं रुक जाएं, आप यहीं पे जूझते मरते रहें, आप इसके बाहर ना निकलें, वही आपके लिए अच्छा है. दिस इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू. ठीक है. सो म्यांमार से यांगोन पोर्ट, क्याकप्यू पोर्ट इज ऑल्सो वन देयर, पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट इन श्रीलंका, अनसस्टेनेबल डेट बर्टन्स टू सीज कंट्रोल ऑफ द रीजनल चोक पॉइंट्स. तो चोक पॉइंट्स क्या होते हैं? चोक पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स which if choked they can disrupt the global supply of goods and commodities and services. For example, this is a choke point, Suez Canal. Malacca Strait is a choke point. Strait of Hormuz is a choke point. ठीक है, तो ये सारे हमारे choke points हैं आपके. तो इन choke points ये देखो एक तरीके से क्या है आपका right center of the Indian Ocean है, और यहां पे आपने unsustainable debt दिया, जरूरत भी नहीं था, ले लो, मत चुकाओ, लीज पे दे दो. इसी तरीके से अब देखो जिबूती में चाइना ने पोर्ट बनाया है, पहला पोर्ट चाइना का ओवर अ डिफरेंट कंट्री, जिबूती में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में. और वहां पे व्हाट इज ट्राइंग टू, इट्स ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ऑफ द दिस पर्टिकुलर एरिया, हॉर्मुज वाला स्टेट. तो इसी को कहते हैं कि जो ये चाइना का बहुत दूर का मिशन है, इन सारे चोक पॉइंट्स के पास अपना इंफ्लुएंस बनाओ, अनसस्टेनेबल डेब्ट दो और फिर उसको ले लो. बिकॉज यूएस का जो मिलिट्री इंफ्लुएंस दुनिया में वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है. चाइना को वहां पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, लेकिन चाइना अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उस चीज को पुश कर रहा है. वॉट इंडिया कैन डू, इंडिया कैसे कर सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कंपीट. इंडिया के खुद अपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये देखो, जो कि हम लोग बीआरआई के अगेंस्ट बनाना चाह रहे हैं. इंडिया ईरान में पता है आपको चाबहार पोर्ट है, उसके बाद यहां से किस तरीके से कनेक्ट करो इसको, एंड देन फ्रॉम हेयर कम बैक टू हेयर. सो इसी को कहते हैं हम लोग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. तो 2015 से ये प्रपोज्ड है, बट इसको अगेन इंडिया का पता है प्रॉब्लम क्या है. इंडिया टॉक्स मोर बट डिलीवर्स लेस, एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम विद इंडियाज डिप्लोमेसी इज, दैट वी गो टू डिफरेंट कंट्रीज, प्रॉमिस देम ऑल दैट थिंग्स, but when it comes to delivery of those projects, we completely lag in that. और यहीं पे that's why many countries support or trust China, because China has a very robust delivery mechanisms unlike India. तो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया के इसलिए जितने भी ये सब प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रैंड प्रोजेक्ट्स हैं, वो अटक जाते हैं किसी ना किसी की वजह से. हमारे चाबहार पोर्ट भी देखो, और ईरान में जो हम रोड बना के अफगानिस्तान जाने चाहते थे वो भी अब. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे जो इंडिया ले तो लेता है बट उसको कर नहीं पाता है. ठीक है.
एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जहां पे इंडिया जापान बोथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जॉइंट प्रोजेक्ट्स को हम लोग अफ्रीका में किया जाए। सागर इनिशिएटिव जो इंडिया ने लाया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, तो इंडियन ओशन रीजन का हमारा पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है सागर, इसके 5 प्रिंसिपल्स आप जाके पढ़ सकते हो। देन यूएस एंड वेस्ट ने लाया बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, कि किस तरीके से पैंडेमिक के बाद वी कैन इमर्ज एज अ बेटर वर्ल्ड, तो उसमें भी इंडिया इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकता है टू कंटेन चाइना। देन फाइनली यू हैव द यूरोप यूनियन का जो हमारे पास प्रोजेक्ट आया है अभी, ईयूज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जहां पे लगभग $700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ईयू करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में। तो इन सारे वेस्ट के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसको इंडिया यूज कर सकता है, बिकॉज इंडिया इज दैट ब्रिज बिटवीन द डेवलप्ड कंट्री एंड द डेवलपिंग वर्ल्ड, है ना। वो हम लोग एक ब्रिज हैं डेवलप्ड दुनिया और डेवलपिंग दुनिया के बीच में। तो किस तरीके से इंडिया अपने सॉफ्ट पावर को लेवरेज करते हुए डेवलप्ड कंट्रीज की जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मदद से और अपना लेबर इंफ्लुएंस इस एरिया में यूज करके चाइना के बीआरआई के प्रोजेक्ट से जो इंफ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच इंडिया कैन डू टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करते हैं। एक और पहलू है इंडिया चाइना रिलेशंस का, बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट में बारे में बात करते हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे पहले देखो इंडिया चाइना का है कहां। जो ईस्टर्न सेक्टर है हमारे, ये वाले सेक्टर, वहां पे मैकमोहन लाइन में डिस्प्यूट है। बिकॉज मैकमोहन लाइन में देखो क्या है कि जो चाइना है वो तिब्बत को तो अपना मान ही चुका है, और ये कहता है कि जो नेपाल है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब साउथ तिब्बत है। देखो चाइना लेबल्स दिस एरिया एज साउथ तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है। तो ईस्टर्न सेक्टर में जो डिस्प्यूट का लाइन है दैट इज द मैकमोहन लाइन, ठीक है। अब आते हैं इधर वाले बॉर्डर में। तो ये देखो हमारा बॉर्डर जो इधर वाला एरिया, देखो ये पूरा मैप है आपका, ठीक है। दिस इज द मैप व्हिच वी हैव, दिस इज द मैप वी हैव। तो यहां पे देखो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है आपका, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपका। ये सियाचिन ग्लेशियर है यहां पे, और ये देखो अक्साई चिन जो कि इंडिया ने 1962 वॉर में खो दिया चाइना को, ठीक है। ये पूरा देखो आपका अक्साई चिन वाला एरिया है, ये आपका लद्दाख है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये वाला रीजन आपका आजाद कश्मीर है जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, और ये वाला आने वाला गिलगित है, गिलगित बल्तिस्तान रीजन है ये। तो ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स मैप है ये। तो ये गिलगित बल्तिस्तान, ये आजाद कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट, लद्दाख जो अभी इंडिया का पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर जो कि अगेन एक तरीके से इंडिया का पार्ट है बट स्टिल इट्स डिस्प्यूटेड, और अक्साई चिन तो हमने ऑलरेडी चाइना को खो चुका है। तो यहां पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है आपको। यहीं पे अभी तो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जो 20 सोल्जर्स मारे गए गलवान में, सॉरी, तो वो सब आपको यहीं पे आता है। यहीं पे बहुत मुश्किल है आपको पेट्रोलिंग करना, कभी ये यहां से यहां घुस जाते हैं, कभी ये यहां से यहां घुस जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है। तो वेस्टर्न सेक्टर में क्या है हमारे पास प्रॉब्लम, कि इंडिया जो है वो जॉनसन लाइन को यूज करता है। ये देखो इंडिया जो है वो आपका ये वाला लाइन यूज करता है, जॉनसन लाइन। सो इंडिया यूजेस दिस जॉनसन लाइन। तो जॉनसन लाइन यूज करने की वजह से पूरा अक्साई चिन हमारा हो गया। लेकिन चाइना कौन सा लाइन यूज करता है, मैकडोनल्ड लाइन। और मैकडोनल्ड लाइन कौन सा है, ये वाला। तो मैकडोनल्ड लाइन यूज करने से पूरा जो अक्साई चिन वाला एरिया ये किसके पास चला गया, चाइना के पास, ठीक है। तो ईस्टर्न सेक्टर में वी हैव अ डिस्प्यूट ऑन मैकमोहन लाइन, वेस्टर्न सेक्टर में वी आर हैविंग डिस्प्यूट जहां पे इंडिया का क्या कहना है कि हमारा लाइन कौन सा है, जॉनसन लाइन, और चाइना का क्या कहना है कि उनका कौन सा है, मैकडोनल्ड लाइन। तो ये डिस्प्यूट वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर का, बीच में भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं, डोकलाम वोकलाम, तो वो सब बहुत ज्यादा बड़े डिस्प्यूट्स नहीं है एज कंपेयर टू दिस वेस्टर्न वाला एरिया में डिस्प्यूट। तो यहां भी देखो सिक्किम विक्किम में, डोकलाम वोकलाम में कुछ कुछ डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, बट दैट्स नॉट। अब ये डिस्प्यूट्स का रीजन क्या है, ये देखो ये माओ जेडोंग का जो हमारे पास पाम और 5 फिंगर्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये पाम हो गया तिब्बत, सो पाम क्या हो गया, तिब्बत हमारा, और 5 फिंगर्स कौन कौन से हो गए हमारे, एक हो गया अरुणाचल, एक हो गया भूटान, दूसरा फिंगर, तीसरा सिक्किम, चौथा फिंगर नेपाल, और 5वां फिंगर लद्दाख। यही था माओ जेडोंग का पॉलिसी, 5 फिंगर्स ऑफ द तिब्बतन पाम। तिब्बत पाम है, उसके 5 उंगली हैं, और ये 5 उंगली को लेना है। और पाम को तो ले ही लिया 1950 में, बस 5 फिंगर्स बच गए हैं, ये भी उसको लेना है। उसमें भी अक्साई चिन कुछ ले ही लिया। सेकेंड, क्यों चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं करता है। अब देखो होता क्या है कि चाइना और इंडिया ने बांग्लादेश का बॉर्डर रिजॉल्व किया, बट चाइना इंडिया के बीच में क्यों नहीं हो पाता है ये।
चाइना करना नहीं चाहता है। इंडिया ने तो बहुत बार हाथ खड़ा किया कि आओ ना, खत्म करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को, क्यों फालतू का लड़ रहे हैं, लेट अस रिजॉल्व दिस। बट चाइना नेवर वांट्स दिस टू हैपन, बिकॉज चाइना नोस कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया जाए तब उसको दो चीज लगता है। पहला कि इंडिया फिर तिब्बत का मुद्दा ज्यादा अच्छे से उठाएगा। देखो अभी क्या है कि मान लो इफ दिस इज इंडिया, इफ दिस इज चाइना, और ये हमारा मान लो बॉर्डर है अभी, ठीक है, अभी मान लो बॉर्डर डिस्प्यूट है, तब तो क्या करता है, कभी कभार चाइना यहां पे घुस जाएगा और बोलेगा ये तो मेरा ही एरिया था, बॉर्डर डिस्प्यूट है, कुछ एरिया छीन लेगा। लेकिन मान लो अगर हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेते हैं, अब मैं कहता हूं कि ये जो है ये इंडिया का बॉर्डर है और ये जो है ये चाइना का बॉर्डर है और ये नो मैंस लैंड है, मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व। तो अब क्या चाइना के पास कोई मुद्दा है इंडिया को प्रोवोक करने के पास बॉर्डर पे? नहीं, क्योंकि अब तो एग्जैक्टली सेटल हो चुका है बाउंड्री। तब तो चाइना के पास कोई बहाना नहीं है अब इंडिया के एरिया में घुस के उसको डीमोटिवेट करना, उसको ह्यूमिलिएट करना। इसीलिए चाइना ये रिजॉल्व ही नहीं करता है, बिकॉज उसको पता है कि जब भी इंडिया थोड़ा सा इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, इंडिया का इंफ्लुएंस बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे पता है, थोड़ा सा उनके एरिया में चल जाएंगे, इतना एरिया को छीन लेंगे, इंडिया ह्यूमिलिएट हो गया, इंडिया डीमोटिवेट हो गया, बात खत्म, जिसको सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। So that's why China has never any intention to resolve the borders with India, because China knows that if they resolve this border, then they will not have any mudda, they will not have any agenda, they will not have any bahana to provoke India unnecessarily whenever they are fearful of India's economic growth, rising global influence. और सेकेंड, चाइना को यह लगता है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ले तो इंडिया विल अगेन ट्राई टू प्ले द तिब्बतन कार्ड, तिब्बत का मुद्दा उठाएगा। अभी इंडिया क्या है, तुमको देखो कि इंडिया काफी डरता है, अभी भी बैकफुट पे है। तिब्बत और ताइवान में हम लोग चाइना को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, हमारा पॉलिसी देखेंगे तो तिब्बत का मुद्दा कभी नहीं उठता है। अभी देखो जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था इंडिया में, हमारा सेमिनार, उसमें दलाई लामा को नहीं इन्विटेशन दिया गया। तो इंडिया अभी भी थोड़ा सेफ खेलता है। तो चाइना को लगता है कि अगर बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लेंगे तब तो इंडिया डरेगा ही नहीं, फिर तो तिब्बत का मुद्दा उठाएगा। इसीलिए चाइना नेवर वांट्स दिस पर्टिकुलर थिंग टू सेटल डाउन। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये साइकोलॉजिकल वॉर है जो सुनजू, जो चाइनीज स्कॉलर थे, उन्होंने बहुत पहले किया था। दिस इज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, माइंडसेट इंपैक्ट करो, डीमोटिवेट करो, उसके दिमाग से डर रहना चाहिए। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टू बर्स्ट द इंडियन बबल एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज वन अगेन रीजन, बिकॉज चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो कल कुछ यहां पे होता है तो चाइना को बहुत बड़ा इंपैक्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ मुख्य कारण है बॉर्डर डिस्प्यूट्स के। लेकिन क्या यही रीजंस गलवान की हैं, या क्या इससे और भी कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से गलवान जैसा बड़ा इंसिडेंट होता है, वो अब हम लोग देखते हैं। तो दीज आर द जनरल पॉइंट्स व्हाई देयर इज अ बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स which has been there because special points why India में why the Galwan incident happened। अब उसको हम लोग समझते हैं यहां पे। Why Galwan? तो गलवान होना अगेन एक टिपिंग पॉइंट है इंडिया चाइना के रिलेशंस में। द रिलेशनशिप हैज कम टू इट्स लोएस्ट लेवल नाउ। सेकेंड, एडवेंचरिज्म इन द नेम ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म टू शोर अप द लेजिटिमेसी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो जो चाइना है वहां डेमोक्रेसी तो है नहीं, एंड नो लीडर एंड नो पॉलिटिकल पार्टी कैन सर्वाइव फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड विदाउट गेनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द पीपल, बिकॉज अदरवाइज द पीपल वुड स्टार्ट टू प्रोटेस्ट। इसलिए चाइना को हमेशा, और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा, और जो चाइना के जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी का, दैट इज शी जिनपिंग या कोई भी लीडर हो, उनको हमेशा लेजिटिमेसी बना के रखना पड़ता है। तो अभी तक जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी लेजिटिमेसी बना के रखा था, इट वाज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेक्टेक्युलर इकोनॉमिक ग्रोथ, लिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, एक्सपोर्ट की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। बट अब वो गोल्डन समय ऑफ चाइनाज इकोनॉमी हैज कम टू अ एंड और कम टू अ स्लो डाउन, एंड चाइना नोज कि अब उतना इकोनॉमिक गुडविल नहीं होगा, चाइना का कैपेसिटी नहीं होगा इतना, एंड दैट्स व्हाई नाउ चाइना इज ट्राइंग टू फोकस मोर टुवर्ड्स नेशनलिस्टिक आइडियाज। तो चाइना ने कहा था ना, जब 100th सेनेटरी सेलिब्रेशन था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लास्ट ईयर 2021 में, तो चाइना ने क्या कहा था शी जिनपिंग में, इफ एनीवन विल ट्राई टू डेयर टू अटैक चाइना और ह्यूमिलिएट चाइना, देन वी विल क्रैक देयर हेड एंड स्पिल देयर ब्लड ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ स्टील
built by the Chinese flesh and blood. So इसी इसको कहते हैं नेशनलिस्टिक कार्ड, बिकॉज अब पता है कि अब कितना इंप्लॉयमेंट देंगे. चाइना का तो खुद टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है चाइना के अंदर से. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का कम हो गया, स्क्यूड सेक्स रेशियो हो गया है, एक्सपोर्ट्स काफी स्लो डाउन पे हो गया है, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से उसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा इंपैक्ट की है. So that's why now they're trying to play this ultra nationalistic card to boost up its legitimacy. Military power to alter status को सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी, सलामी पीस स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, कि चाइना एक तरीके से मैसेज बताना चाहता है कि ठीक है, हमें तो पूरा लद्दाख चाहिए, हम एक बार में नहीं ले सकते हैं, बट हमारे पास इतना मिलिट्री कैपेबिलिटी कि हम उसको टुकड़े टुकड़े में लेते रहेंगे. इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी. यूएस, और ये एक और गलवान के समय, बिकॉज इंडिया यूएस का रिलेशन काफी बढ़ रहा था. आपको पता है 2017 में क्वाड भी ऑपरेशनलाइज हो चुका था. क्वाड भी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे अपग्रेड हो चुका था, अब तो फाइनली समिट लेवल पे हो चुका है, बट क्वाड में काफी ज्यादा मोमेंटम बढ़ रहा था. 2017 जब डोकलाम हुआ तो इंडिया स्टार्टेड टू पाइवॉट मोर टुवर्ड्स वेस्ट, और उसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट था रिवाइटलाइजेशन ऑफ क्वाड. तो इस तरीके से इस गलवान इंसिडेंट की वजह से इंडिया को एक मैसेज देना था कि यूएस के साथ जितना भी दोस्ती कर लो आपको बचा नहीं पाएगा. और यूएस के लिए मैसेज था कि आप ये मत दुनिया को बताओ कि आप जिस कंट्री को सपोर्ट कर दोगे तो आप उसको बचा लोगे, नहीं, आपके दोस्त को भी हम घुस के अटैक कर सकते हैं. तो ये एक तरीके से मैसेज गेम था बोथ टू इंडिया एंड बोथ टू द यूएस. फाइनली इट सिग्नल्स द एंड ऑफ बीजिंग्स पीसफुल राइज. जो बीजिंग्स का पीसफुल राइज था, दैट वाज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ डेंग जियोपिंग, कीपिंग द प्रोफाइल लो एंड बाइंडिंग योर टाइम, हाइड योर स्ट्रेंथ. Now China's think the time has come. There's no point in hiding the strength. It thinks that its time has come, and it has the capacity to alter the status quo unilaterally. And that's what the 5 broad, basic, most important reason why Galwan happened. तो ये तो रीजन है ही डिस्प्यूट्स के, लेकिन गलवान होना दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम ऑफ पिक्चर, बिकॉज ये एक बड़ा इंसिडेंट था जहां पे इतने साल बाद पहली बार लद्दाख में इंडियन सोल्जर्स मरे थे. So that's why it was a very much tipping point in the history. अब एक और छोटा सा एस्पेक्ट है, आपको ताइवान का मुद्दा हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं. तो ताइवान देखो, यहां पे हमने बात किया था कि चाइना में जब कोलोनिज्म खत्म हो गया, जिसको चाइना कहता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन. सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का मतलब कि चाइना को जो 100 साल कोलोनाइज किया गया था 1839 से लेके 1939 तक. 1939 में कोलोनिज्म खत्म हो चुका था, सब लोग जा चुके थे. इसके बाद से लेके 1949 तक चाइना में सिविल वॉर हो गया. चाइना में सिविल वॉर के बीच में 2 पार्टीज थे, एक थी केएमटी पार्टी और एक थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. इसको रिप्रेजेंट करते थे माओ जेडोंग और इसको चियांग काई शेक. इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया. सीसीपी जीत गया ये वॉर. इसको रशिया भी सपोर्ट कर रहा था, इसको यूएस भी सपोर्ट कर रहा था, केएमटी को इसको रशिया सपोर्ट कर रहा था. सीसीपी जीत गया बिकॉज माओ जेडोंग करिज्मेटिक लीडर थे. सारे पेजेंट्स, बिकॉज उस समय चाइना एक तरीके की एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, तो सारे पेजेंट्स सीसीपी के साथ खड़े हो गए थे. सो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और अपने आप को एस्टैब्लिश कर ली चाइना में. और ये जो केएमटी थी, जो लिबरल प्रिंसिपल्स थी, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती थी, ये भाग के चली गई ताइवान में और ताइवान में अपने आप को एस्टैब्लिश कर ली. तो इसीलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. और जो केएमटी जो ताइवान में है, इसको क्या कहती है? रिपब्लिक ऑफ चाइना. ठीक है, तो ये इस तरीके से 2 है. चाइना कहता है कि ताइवान मेरा ही है, बट ताइवान कहता है कि नहीं, आई एम इंडिपेंडेंट कंट्री, दैट आई एम द रियल चाइना. एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से दैट आई एम द रियल चाइना एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई चाइना. So this is known as PRC और इसको कहते हैं हम लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना. नाउ हिस्ट्री ऑफ ताइवान. तो ताइवान क्या है? ऑफिशियली नोन एज अ रिपब्लिक ऑफ चाइना. इसको 1949 में बनाया गया था. इन 1949 सीपीसी, सॉरी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी आर्मी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिफीटेड इट. ठीक है, तो ये था आपका. ठीक है, तो इस तरीके से चाइना का फॉर्मेशन हुआ था आपका. तो मतलब एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और एक तरफ आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना है. और चाइना का आपको पता है फेमस पॉलिसी वन चाइना पॉलिसी. तो वन चाइना पॉलिसी किसका है? ये चाइना का. कौन चाइना का? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, जो रियल में भी उतना बड़ा चाइना है. तो चाइना क्या कहता है कि भाई हम फॉलो करते हैं वन चाइना पॉलिसी. वन चाइना पॉलिसी के अंदर कि अगर कोई भी कंट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाया विद ताइवान, that is a Republic of China, then I will end all kind of diplomatic engagement with that particular country.
फॉर एग्जाम्पल कल को मान लो इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लिया ताइवान के साथ, देन दैट मीन्स कि चाइना विल एंड ऑल द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इंडिया. ठीक है. सो ऑल्दो इंडिया डज नॉट, India accepts one China policy and India accepts People's Republic of China as a real China. But still we have engagements, but we do not have diplomatic engagements. तो हमारा अभी भी इनफॉर्मल वे में एंगेजमेंट होता है. वी हैव इकोनॉमिक रिलेशंस, वी हैव अदर रिलेशंस, बट डिप्लोमेटिक रिलेशंस केवल कुछ ही कंट्रीज के पास है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं यूएस एंड ताइवान का रिलेशन. तो 1945 में ताइवान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाया गया था. दिस इज वेरी शॉकिंग बट दैट्स ट्रू. क्योंकि उस समय ताइवान वाज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएस. 1971 में, अब पता है आपको क्या एक्सेस हुआ ना, यूएस, चाइना, पाकिस्तान. तो इस समय बिकॉज द वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, ताइवान को एक्सपेल कर दिया गया यूनाइटेड नेशन से. और अब यूएस किसको रियल चाइना मानने लगा? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को. और यहीं पे पीआरसी को आगे जाके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बना दिया गया. यह था यूएस का एक बहुत बड़ा शिफ्ट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी. So from recognizing the Republic of China, that is Taiwan, as the real China, moving towards accepting People's Republic of China as the real China. 1979 में फिर रिलेशनशिप और चाइना और इंडिया का बढ़ता है, चाइना यूएस का बढ़ता है, फॉर्मल टाइज एंड वन चाइना पॉलिसी यूएस नाउ एक्सेप्ट्स. नाउ यूएस हैव एक्सेप्टेड द वन चाइना पॉलिसी. बट उसके बाद स्टिल इंडिया चाइना का यूएस का ताइवान के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश था कुछ एक्ट्स के थ्रू, ताइवान रिलेशंस एक्ट एंड ताइपी एक्ट जो सबसे लेटेस्ट एक्ट है. और ताइपी एक्ट के अंदर बेसिकली ये कहा गया है कि यूएस विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स टू ताइवान so that Taiwan can ensure its sovereignty from the aggressive China. तो ताइपी एक्ट 2019 was a very again a big turning point कि अब एक तरीके से जो यूएस जो था वो चाइना की तरफ हो गया था. Now it's again coming back to Taiwan because it knows that China can acquire Taiwan and China needs to support Taiwan क्योंकि ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट है. And the most important point of Taiwan is first it is democratic country and that's why it is very close to China and second सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है यूएस का ताइवान के लिए. ठीक है. तो बाइडेन ने कहा यूएस विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना. बट पेलोसी का जो पता है आपको, यूएस की जो स्पीकर थी, पेलोसी विजिट्स टू ताइवान. 25 साल में सबसे पहली बार कोई इतने हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स को विजिट करना हुआ. चाइना ने क्या कहा वॉशिंगटन को कि भैया आग के साथ मत खेलो, डू नॉट प्ले विद फायर. बीजिंग विल नॉट हेजिटेट टू स्टार्ट अ वॉर इफ ताइवान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस. दैट वाज अगेन अ वेरी बिग मैसेज. 2023 में यूएस स्पीकर्स मैकार्थी मीट्स ताइवान साई डिस्पाइट चाइना's प्रेशर. अभी आपको पता है रिसेंटली न्यूज में था जब चाइनीज ताइवान की प्रेसिडेंट यूएस विजिट पे थी उस पूरे कॉन्टिनेंट में, तो वहां पे फिर अगेन स्पीकर से मिली. चाइना ने कहा था कि मत मिलना, लेकिन डिस्पाइट बीइंग ताइवान प्रेसिडेंट मिली और चाइना ने उसके बाद प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स किया ताइवान के ऊपर, प्रोवोक किया ताइवान को. ठीक है. तो ये एक तरीके से यूएस का पॉलिसी है ताइवान के लिए, आपको समझ में आना. तो पहले ताइवान को मानता था, 1971 में ताइवान को उठा के फेंक दिया, वन चाइना पॉलिसी मान लिया. और असली चाइना किसको मान लिया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप हो गया. उसके बाद यूएस और चाइना का रिलेशन काफी बढ़ा. लेकिन अब जब यूएस चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहा है तो यूएस इज अगेन स्टार्टेड टू प्ले द ताइवान कार्ड. इससे ताइवान अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया एंड यूएस इज ट्राइंग टू पाइवॉट टुवर्ड्स अगेन ताइवान. और ताइवान को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस बहुत ज्यादा सप्लाईज दे रहा है. बाइडेन ने कहा है कि आई विल प्रोटेक्ट यू. ठीक है. तो ये एक तरीके से यूएस पॉलिसी ऑफ डांसिंग हियर एंड देयर बिकॉज यूएस ऑलवेज लुक्स फार मोर अहेड देन एनी अदर कंट्री स्टार्ट्स टू थिंक. तो जहां से हमारी सोचना शुरू होता है, जहां हमारा सोचना खत्म होता है, वहां से इनफैक्ट यूएस शुरू करता है अपने सोचना. दैट्स व्हाई यूएस हैज बीन वन ऑफ द मेजर हेजेमोनिक पावर सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इंडिया एंड ताइवान का रिलेशन अगेन इंडिया एंड ताइवान के बीच में, क्योंकि आपको पता है इंडिया ने तो 1950 में ही हमने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रियल चाइना मान लिया था. तो हमारा रिलेशनशिप तो ताइवान के साथ बिल्कुल खत्म ही था कोल्ड वॉर के समय, बिकॉज ताइवान वॉज ऑलवेज एंटी ऑफ चाइना. और हमारा चाइना का, बिकॉज चाइना हमारा बॉर्डर है, तो वी डिड नॉट वांटेड टू प्रोवोक चाइना. एंड साथ ही साथ हमारा रिलेशनशिप नेहरू के समय तो ठीक ही ठाक था बिफोर 1962. तो बट कोल्ड वॉर के समय कोई भी इंगेजमेंट नहीं था. ठीक है. उसके बाद इंगेजमेंट बढ़ा. इंडिया स्टार्टेड टू इंटरैक्ट मोर एंड मोर विद ताइवान. सो नो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन. डिप्लोमेटिक रिलेशन तो है ही नहीं बिकॉज इंडिया अगेन एक्सेप्ट्स द वन चाइना पॉलिसी. तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो है नहीं. बट डिस्पाइट दैट वी हैड मेनी अदर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस लाइक इंडिया ताइपी एसोसिएशन है ताइपी में. ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है जो कि ताइवान गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, नॉट एम्बेसी है, बिकॉज एम्बेसी इज अगेन अ डिप्लोमेटिक चैनल. तो ये सब इनफॉर्मल चैनल्स हैं.
2020 में देखो 2 इंडियन एमपीज फर्स्ट टाइम वर्चुअली अटेंडेड द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ ताइवान्स प्रेसिडेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसमें एक मीनाक्षी लेखी थी जो अभी एमओएस भी है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। फर्स्ट कंट्री टू सेंड मेडिकल इक्विपमेंट टू इंडिया। ठीक है, ठीक है। सो दैट्स वाई ताइवान के साथ हमारा अनऑफिशियल लेवल पे काफी ज्यादा रिलेशनशिप अभी रिसेंटली भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। ठीक है, तो इंडिया ऑल्दो एक्सेप्ट्स वन चाइना पॉलिसी, India does not have any official diplomatic relations, but still India has informal, unofficial relationships. We have 2 offices, one Indian office in Taipei, Indian Taipei Association, and Taiwan representative office in India, Taipei Economic and Cultural Center. लेकिन आपको इंडिया जो है एक स्मार्ट पॉलिसी है कि न्यू दिल्ली हैज स्टार्टेड टू स्टॉप मेंशनिंग वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, इंडिया हैज न्यू दिल्ली हैज स्टॉप्ड मेंशनिंग इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट वन चाइना पॉलिसी। तो इंडिया वन चाइना पॉलिसी मानता है बट अपने स्टेटमेंट्स में कहता नहीं है। अगेन इंडिया ऑल्सो ट्राइंग टू प्ले दैट साइकोलॉजिकल गेम। ये कब हुआ था? ये जब हुआ था जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल वीजास देने लगा, स्टेपल पासपोर्ट्स। तो एज अ रिटेलिएशन इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी अब कहता नहीं है इंडिया। तो आप देखोगे जब भी आप इंडिया के एम्बेसी का स्टेटमेंट देखोगे, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देखोगे, तो इंडिया से दैट वी एक्सेप्ट द स्टेटमेंट विच वी हैव बीन एक्सेप्टिंग एज ऑफ नाउ, बट वी डोंट नीड टू रिट्रिएट द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। तो कुछ है नहीं, हम वही मानते बट हम कह नहीं रहे हैं। एक तरीके से अगेन प्रोवोक कर रहे हैं कुछ हद तक चाइना को। यार तुम हमें प्रोवोक करोगे तो हम भी इस तरीके का माइंड गेम्स खेलेंगे। ठीक है, सो इंडिया एक्सेप्ट्स वन चाइना पॉलिसी बट इंडिया डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंडिया डज नॉट यूज दिस कॉन्सेप्ट एज ऑफ नाउ। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप में स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट है भाई, इंडिया का चाइना थ्रेट है, ताइवान के लिए भी चाइना थ्रेट है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ताइवान का न्यू साउथबाउंड पॉलिसी है, तो दोनों में कन्वर्जेंसेस है। ताइवान का इलेक्ट्रिकल सोफिस्टिकेशन है सेमीकंडक्टर्स में, इंडिया इज गोइंग विद दिस डिजिटल इंडिया, तो वहां पे दोनों का कन्वर्जेंसेस है। बायो फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज टू क्लाइमेट चेंज, ट्रेड रिलेशनशिप, हमारा एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी रहा है, और शेयर्ड वैल्यूज, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ। तो इन हिसाब से एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप रहा है। नाउ व्हाट इज द वे अहेड? कैसे इंडिया के पास क्या क्या सॉल्यूशंस है चाइना को टैकल करने के लिए? सबसे पहले क्या है कि अगेन बैलेंसिंग के साथ जाओ, इंटरनल बैलेंसिंग करो और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, और एक्सटर्नल बैलेंसिंग में हैव अ गुड रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड और द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस एंड यू हैव टू एक्सप्लॉइट ऑल दोस अपॉर्चुनिटीज, ऑल दोस कॉन्ट्रडिक्शंस व्हिच फुलफिल्स योर नेशनल इंटरेस्ट। हेंस इंडिया शुड गो फॉर बोथ द बैलेंसिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बैलेंसिंग। सेकंड कम्स रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट को आप रिजॉल्व करो, चाइना को आप फोर्स करो कि जो भी स्टेटस को आपने चेंज किया उसको वापस रिस्टोर करे। सो चाइना शुड रिस्टोर द स्टेटस को एंटे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को आप ज्यादा फोर्टिफिकेशन करो, बिकॉज चाइना ऑलवेज सफर्स फ्रॉम दैट मलक्का डिलेमा, और इसके लिए हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को हम और अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। 2+1 पार्टनरशिप हम लोग अफगानिस्तान में कर सकते हैं। 2+1 पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है? व्हेन इंडिया ट्राइज टू हैव अ पार्टनरशिप विद कंट्रीज लाइक जापान, क्योंकि जापान के पास पैसा है, इंडिया के पास लेबर है, तो किस तरीके से दोनों मिलके किसी थर्ड डेवलपिंग कंट्री में हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, अफगानिस्तान, अफ्रीकन कंट्री। सो 2+1 पार्टनरशिप। और एस जयशंकर ने कहा है कि 3M फॉलो होना चाहिए, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट्स। ठीक है, सो इसके साथ हम लोग रिलेशनशिप्स को अपने नॉर्मल कर सकते हैं। सो ये है आपको इंडिया, चाइना, ताइवान, यूएस, इन सारे कॉम्प्लेक्सिटीज, रशिया। ये काफी बड़ा टॉपिक है बट इतना भी एवरीवन शुड नो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप विच इज द most important relationship and the biggest foreign policy challenge for India. And India, and not only India, in fact, the entire world is facing this kind of threat, and every country is trying to leverage or to make some kind of plan to counter this rising Chinese influence. And India is also trying to do the same. And I hope that both the countries' relationship improve, because the both countries should understand that Asia is big enough for both elephant and the dragon to dance. And hence, in this context, I would highly recommend that both the leadership, and especially the leadership from the Chinese side, show pragmatism, show respect for India, and be tolerant towards India's rise also, because India has always been supportive of Chinese growth, unlike the Chinese counterparts. So I think so this is a time that Chinese statesmanship shows that kind of respect, gets out of that great power politics, and try to support India, because you know that if you are going to fight, then both will be collapsed. So both will live or both will perish together. It's up to the choice of both the leaders how they're going to build or shape the future. I hope you like this lecture. Please like the channel, subscribe the channel, and get in touch with me if you have any kind of problem related to international affairs. Thank you. See you again.